This is the lecture of your microprocessor, and this is the lecture 10, and in this lecture we discuss about the timing diagram, and how to suppose in the given instruction how to design the timing diagram. And in this lecture we already we also understand about the T states that we'll discuss in the your previous class. Is the suppose there is an MVI instructions we use, there is in 7 T states. If you use the move a comma b, there is in 4 T states, and in this timing diagrams we understand how to find the T states. And this T states are for helping to the solution of your delay, and if you know the total delay formula is equal to the number of T states divided by the frequency. This is the important formula we know. Now we start to the lecture 10, and this is the timing diagrams. In the timing diagram, represent of various control signals generated during executions of an instruction. It means that this representation of various control signals, if you understand, if you taught about the 8085 pin diagrams, in the 8085 pin diagrams I already discussed ALE, that is address latch enables, and this address latch enables is high when your lower address bus is enabled, and if the low state it is an data bus is enabled. And there is two types of addressing bus, higher address bus and the lower address bus. And higher address bus we already discussed, there is 3 clock cycles required for higher address bus को आपको 3 clock pulse लगता था, and there is 1 clock pulse required for your lower address bus, and there we will be used as a latch for storing the 2 clock pulse. your lower address bus को हम लोग 2 clock pulse के लिए स्टोर करने के लिए हम लोग लैच का यूज़ करते थे, तो हम लोग कहते थे एड्रेस लैच इनेबल, मीन्स योर लैच इज इनेबल बाय यूजिंग दिस ALE. Now that is read operations, write operations, and IOM. This is the input output. There is some IOM bar. If you written as IOM bar is written here. तो these are the instructions we already know. हम लोग इस discussions already कर चुके हैं कि हमारा read ऑपरेशन कब होगा, राइट ऑपरेशन कब होगा, और IOM बार के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और ये सारा इंस्ट्रक्शंस जो कंट्रोलिंग सिग्नल्स जो हम लोग ने देखा था, एक टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स, उस टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स में ये अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उस इंस्ट्रक्शन को क्या होता है डिकोड करते हैं. पहले फेच करते हैं, आफ्टर द फेच वी विल डिकोड इनटू द मशीन साइकिल्स, मशीन लैंग्वेज में हम लोग कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग द डिकोडर्स, एंड अकॉर्डिंग टू योर कंट्रोल सिग्नल्स आर इनेबल, और उसके अकॉर्डिंग आपका कंट्रोल सिग्नल्स जो है वो इनेबल होता है. तो सबसे पहले वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज़ योर स्टेटस सिग्नल. इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आप टेबल देख रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर ऑब्जेक्टिव एग्जाम, इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वी विल अंडरस्टैंड very carefully. These are the status signals we are present in your control diagrams. If you go to the architectures and you see in the timing and control diagram, there is an S0 and S1 pins are there. This S0 and S1 pins are your status signals. According to this your pin, your read operations, write operations, and your halt operations, your fetch operations, we will be all are depend on this your status signals. आपका ये जो स्टेटस सिग्नल के वैल्यूज़, क्योंकि यहाँ पर कितने स्टेटस सिग्नल हैं 2 हैं, तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन 2 to the power 2, देयर इज एन 4 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल. ठीक है, एंड ईच कॉम्बिनेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस इंस्ट्रक्शन में हमारा ये जो स्टेटस सिग्नल है क्या कंडीशंस फॉलो करता है. सबसे पहले अगर S1 की वैल्यू 0, S0 की वैल्यू 0, तो देयर इज एन हॉल्ट इंस्ट्रक्शन, मीन्स नो ऑपरेशन. अगर हम प्रोग्राम में हॉल्ट इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले ये कहाँ जाता है आपके ऑपकोड रजिस्टर में. अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक होता है डेट इज़ योर रजिस्टर. आप आर्किटेक्चर डायग्राम में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ये डायरेक्ट आपका रजिस्टर में जाता है, दैट इज़ योर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. उस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होगा, इसका एक ऑपकोड जनरेट होगा. हॉल्ट इंस्ट्रक्शन का क्या होगा, ऑपकोड जनरेट होगा, और ये ऑपकोड किस में कन्वर्ट होगा, योर डिकोड्स करेगा, और देन योर कंट्रोल सिग्नल्स
देन योर माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड व्हाट आर द सिग्नल्स, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, इट द इनेबल्स, और इनेबल क्या करेगा, S0 0 और S1 की वैल्यू 0 और S0, इसका मतलब हॉल्ट इंस्ट्रक्शन, नो ऑपरेशन, मतलब इट मीन्स दैट योर माइक्रो प्रोसेसर विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन. If S1 की वैल्यू 0 and 1, the microprocessor understand there is an write operations. अगर आपको write operation करना, if you apply the instruction, आप कोई instruction apply करते हैं like your say that STA store to accumulator to memory, इसका मतलब ये है कि it will be understand that कि the instruction will say that कि you will write operation को आपको enable करना है. तो write operation को enable का मतलब है कि S1 की वैल्यू 0 और S0 की वैल्यू 1, that is an write operation, then microprocessor will enable the write operation WR bar. If S1 की वैल्यू 1 और S0 की वैल्यू 0, it means that the microprocessor understand that is your read operation. For example, LDA, it means that the microprocessor understand there is a memory read operations are enabled. So it will say that this read operation is enabled, it means RD bar is enabled. If S1 की वैल्यू 1 और S0 की वैल्यू 1, this is called as opcode fetch operation and reading the instruction. ये क्या होता है, opcode fetch instruction होता है, और आपको पता है opcode का मतलब this is all are words, जो भी words में आपके होते हैं, this is your opcode, or that is your fetch, it means it is the read the opcode instruction, that instructions when S1 की वैल्यू 1 और S0 की वैल्यू 0. इसका मतलब जब भी आप कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, S1 की वैल्यू 1 और S0 की वैल्यू 1, क्योंकि सबसे पहले आपका ऑपकोड को ही माइक्रो प्रोसेसर रीड करता है, क्योंकि सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं. सपोज MVI A कॉमा सम डेटा, इट मीन्स फर्स्ट वी रीड दिस MVI A, this is your opcode and it is go to the your instruction registers and then finally your decodings. So this is your opcode fetch, your first instructions is ready. Now next table we understand, and this is the machine cycle, this is your status, and this is your control signals, this is your IO M bar, S1 and S0. Now the first operation is opcode fetch. opcode fetch में क्या होगा, when S1 की वैल्यू 1, S0 की वैल्यू 1 and your memory is 0. यहाँ पर आप देख रहे हैं IO/M बार में यहाँ पर हम 0 दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम मेमोरी से क्या कर रहे हैं, फेच ऑपरेशन, ऑपकोड फेच कर रहे हैं. तो एक पॉइंट यहाँ पर थोड़ा समझने के लिए क्या है, आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, सपोज इफ़ यू राइट एनी प्रोग्राम इन द माइक्रो प्रोसेसर, फर्स्ट योर प्रोग्राम विल स्टोर इन द मेमोरी. सबसे पहले वो प्रोग्राम कहाँ स्टोर होता है, आपके मेमोरी में. देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड, अब आपका वो एग्जीक्यूट करता है. तो फर्स्ट इफ यू राइट ए प्रोग्राम इन द माइक्रो प्रोसेसर, देन फर्स्ट स्टोर इन द मेमोरी एंड अकॉर्डिंग टू इट विल बी गो टू द माइक्रो प्रोसेसर. तो सबसे पहले आपको क्या IO/M बार, इसका मतलब आपका ये मेमोरी से फेच ऑपरेशन हो रहा है, और फेच ऑपरेशन में क्या होता है, रीड ऑपरेशन. तो रीड बार की वैल्यू क्या होगी, 0. अगर आपको मेमोरी रीड ऑपरेशन करना है, इसका मतलब IO/M बार में मेमोरी को इनेबल करना पड़ेगा, तो डेट इज़ 0 पुट करेंगे, और S1 की वैल्यू 1 और S0 की वैल्यू 0. आप फर्स्ट केस में देखिए रीड ऑपरेशन में सेम है, बस हम यहाँ पर ऐड क्या कर दिए, IO/M बार. रीड ऑपरेशन की अगर आप बात करेंगे, अगर आप रीड ऑपरेशन की बात करते हैं, तो रीड ऑपरेशन में आप देखिए जब आप रीड कर रहे हैं तो S1 की वैल्यू 1 और S0 की वैल्यू 0, तो आपका क्या हो रहा है, रीड ऑप. बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी रीड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं. तो मेमोरी रीड में क्या हो रहा है, सिर्फ आप IO/M बार में आप क्या करेंगे कि मेमोरी को इनेबल करना है, तो 0 पुट किए, और S1 की वैल्यू 1 और S0 की वैल्यू 0, रीड ऑपरेशन. अगर आपको मेमोरी राइट ऑपरेशन करना है, अगर आपको क्या करना है, मेमोरी राइट ऑपरेशन करना है, तो इन दिस केस व्हेन द मेमोरी वैल्यू इज 0 एंड S1 की वैल्यू 0 और S0 की वैल्यू 1, दिस इज योर राइट ऑपरेशन. ओके, नाउ द सेकेंड वन इज IO रीड. IO रीड का मतलब ये है कि अगर हमें इनपुट आउटपुट पिन में रीड ऑपरेशन करना है,
इसका मतलब इस पिन में हमें क्या देना पड़ेगा 1, क्योंकि 1 देंगे तो IO पिन इनेबल होगा। देन आपको रीड ऑपरेशन करना है तो S1 की वैल्यू 1, S0 की वैल्यू 0, तो रीड ऑपरेशन। IO राइट मतलब इनपुट आउटपुट पिन में आपको राइट ऑपरेशन वर्क करना है, इट इज़ 1 0 1, देन राइट ऑपरेशन। इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, इंटरप्ट का एक्नॉलेजमेंट अगर आपको सेंड करना है, क्योंकि इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट आपके पेरिफेरल डिवाइस इनपुट आउटपुट टर्मिनल से कनेक्ट होता है। इन दिस केस इनपुट पिन इज़ 1 एंड 1 1, S1 की वैल्यू 1, और यहाँ पर इस केस में देखिए, अगर आप फर्स्ट केस देखिए, इस केस को अगर आप देख रहे हैं, S1 की वैल्यू अगर आपका 1 है और S0 की वैल्यू 1 है, बट IO/M बार में मेमोरी को इनेबल करते हैं तो इट इज़ द फेच ऑपरेशन, ऑपकोड फेच। लेकिन अगर आप इनेबल इनपुट आउटपुट को इनेबल करते हैं और S1 की वैल्यू 1 और S0 की वैल्यू 1, इसका मतलब आप इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट के वैल्यूज़ को सेंड कर रहे हैं, डेट इज़ INTA बार इज इक्वल टू 0। और हॉल्ट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इट्स वैल्यू इज़ आइदर 1 या 0, डोंट केयर है। इफ़ S1 की वैल्यू 0, S0 की वैल्यू 0, हॉल्ट ऑपरेशन मीन्स नो ऑपरेशन। आपने जस्ट देखा, ये कंट्रोलिंग स्टेटस जो सिग्नल्स है, आपको ये ध्यान रखना है कि कब क्या होता है। दिस स्टेटस सिग्नल्स आर कम इन योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेनी टाइम्स। Now we discuss about the timing diagram. This timing diagrams, we say that these are the instructions. is suppose move A, B. आपने क्या किया, एक माइक्रो प्रोसेसर लिया, सपोज दिस इज योर 8085, दिस इज योर माइक्रो प्रोसेसर। इस माइक्रो प्रोसेसर में आप चाह रहे हैं कि ये इंस्ट्रक्शन रीड करें, तो सबसे पहले क्या होगा कि आप इस प्रोग्राम को अपने मेमोरी में आप लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाउ सपोज योर मेमोरी, आपका ये मेमोरी है, दिस इज़ योर मेमोरी, और ये मेमोरी में आपका जो स्टार्टिंग आपने माना है कि आपका मेमोरी स्टार्ट हो रहा है 800H। सपोज मान लीजिए कि योर मेमोरी इज स्टार्टिंग एट दिस पॉइंट 800H, सॉरी, no, your memory is suppose this is your instruction, this is your timing diagram is move A, B, and suppose you will be write a program and we will execute this program move A, B। हम चाह रहे हैं कि हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर में, दिस इज़ योर माइक्रो प्रोसेसर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप एक प्रोग्रामिंग लिखेंगे इन दिस मेमोरी। सबसे पहले आप प्रोग्राम लिखेंगे आप अपने मेमोरी में। तो आपका मेमोरी का आप सपोज स्टार्ट कर रहे हैं, एड्रेस जो है A0, आप कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम एक याद रिमेंबर करने के लिए हमने स्टार्ट यहाँ से कर दिया। आप कहीं से, आपकी इच्छा, आपकी मेमोरी, आप जहाँ से आप मेमोरी में स्टार्ट करना चाहते हैं, जो आपका मैन्युफैक्चरर है उसने डिज़ाइन कर दिया कि आपको वो आपको गिवन होगा। आप जब जाएंगे, जब आप माइक्रो प्रोसेसर किट लेने जाएंगे तो वो आपको माइक्रो प्रोसेसर किट वाले बता देंगे कि आपका मेमोरी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप जो भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे आपका मेमोरी एड्रेस यहाँ से यहाँ है, आप इसके बीच में प्रोग्रामिंग अपना कर सकते हैं। जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे इस एड्रेस में आपका स्टोर होगा, ठीक है। तो हमारा मान लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द माइक्रो प्रोसेसर आप जब डिज़ाइन करने गए ये माइक्रो प्रोसेसर, तो हमने देखा कि हमारे पास ये मेमोरी इसके अंदर ये स्टोर है। अब क्या होगा कि ये माइक्रो प्रोसेसर में आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया मूव A, B, आपने लिखा। जैसे आपने लिखा तो आपका ये माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, इस मेमोरी एड्रेस में स्टोर कर लेगा। क्या स्टोर करेगा, वो इसका ऑपकोड स्टोर करेगा। तो ये आपको पता होगा कि मूव A, B का ऑपकोड क्या है, 78। तो डेट 78 विल बी स्टोर्ड हियर, ठीक है। जैसे आप मूव A, B दिए, इसका मतलब ये होगा दिस इज योर फेच इंस्ट्रक्शन, ये आपका ऑपकोड फेच है, ऑपकोड है। इसका मतलब अब आपका ऑपरेशन जो होगा डेट इज योर ऑपकोड फेच साइकिल। नाउ वी गो टू दिस डायग्राम। अब आप इस डायग्राम में देखिए, दिस इज योर मेमोरी, आपने मेमोरी में स्टोर कर लिया। देन आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा, ऑपकोड फेच। जैसे ऑपकोड फेच साइकिल, दिस इज ऑपकोड फेच साइकिल एंड इट विल बी सेंड 78। ये क्या करेगा, इसको 78H विल सेंड फ्रॉम दिस, ठीक है। कैसे सेंड करेगा, इट विल बी अंडरस्टैंड द टाइमिंग साइकिल, हम टाइमिंग में समझेंगे, बट यहाँ पर अभी हम समझ रहे हैं कि 78 ये यहाँ पर सेंड करेगा। माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 78, दैट प्रोसेस विल बी वर्किंग आउट।
ठीक है, अब देखिए कैसे वर्क करता है। नाउ योर टाइमिंग डायग्राम, ठीक है, दिस इज योर टाइमिंग डायग्राम। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज मूव a comma b and this is defined this address A000H, ठीक है। द फर्स्ट इज योर द फर्स्ट 3 क्लॉक, आपको पता है कि फर्स्ट 3 क्लॉक साइकिल जो आपको लगता है वो हायर एड्रेस को स्टोर करने में लगता है। द फर्स्ट 3 क्लॉक साइकिल इज यूज टू स्टोर योर हायर एड्रेस। तो आपका इसमें हायर एड्रेस क्या है A0 और लोअर एड्रेस क्या है आपका 00H, यू सी। तो फर्स्ट 3 क्लॉक साइकिल स्टोर दिस हायर एड्रेस एंड दिस 1 क्लॉक साइकिल आपको लगता है लोअर एड्रेस को स्टोर करने में, ठीक है। नाउ वी गो टू द diagram. We see in this first 3 clock cycle, this first T1, T2 and T3, we will be enable, this is the higher address bus. आप देख रहे होंगे इस 3 क्लॉक साइकिल में आपका हायर एड्रेस स्टोर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको मैंने बताया हायर एड्रेस आपका इनेबल होगा फर्स्ट 3 क्लॉक साइकिल, और इसमें क्या स्टोर होगा, इट विल स्टोर A0H, okay. And the 1 clock cycle, we see that there is an only 1 clock cycle required for the lower address, and in this lower address we store 00H. No. Okay. Now in this case we see that ALE is high. This 1 clock cycle we see that your address latch enable in the high state. आपको कहा गया था कि एड्रेस लैच इनेबल 1 क्लॉक साइकिल हाई स्टेट फर्स्ट क्लॉक साइकिल होता है। इस केस में देखिए आपका लोअर एड्रेस इनेबल हो रहा है एंड द रेस्ट ऑफ द क्लॉक साइकिल वी सी डेट इज द वैल्यू इज द लोअर स्टेट इज 0। आपका जो है लोअर एड्रेस ऑफ हो जाता है और डेटा जो आपका डेटा एड्रेस है, जो डेटा बस है, वो आपका इनेबल हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्लॉक साइकिल में एड्रेस हो गया, मतलब ये मेमोरी फर्स्ट क्या किया, माइक्रो प्रोसेसर इनेबल हुआ और 3 क्लॉक साइकिल में जो आपके स्टोर एड्रेस है, जिस मतलब आपने कहाँ स्टोर किया A000H, उस एड्रेस को वो पहले रीड कर लिया, पहले उसको फेच किया, रीड किया, देन इट विल बी इनेबल, देन इट विल बी पासिस द 78। अब आपका जो दैट 78, ये आप देख रहे हैं दिस इज 78, ये ऑपकोड फेच साइकिल। अब ये जैसे वो रीड किया, अब वो क्या करेगा, डेटा बस से पास आपका करना स्टार्ट कर देगा इस मेमोरी से। अब आपका 78 पास होगा कहाँ पर, 8085 माइक्रो प्रोसेसर एंड दिस ऑपकोड इज मूव A, B, इससे आपका ऑपकोड पास होगा डेट इज 78H, ओके। This 78H is passed, okay. Now we go to the next point. अब हम यहाँ पर एक देखते हैं एक पॉइंट, यहाँ पर आप देखिए कि आप T4 साइकिल अगर आप देख रहे होंगे तो T4 साइकिल में आपका ओनली 3 क्लॉक पल्स लगता है फॉर हायर एड्रेस, रेस्ट 4th क्लॉक साइकिल जो है दिस इज अनस्पेसिफाइड, ये आपका अनस्पेसिफाइड होता है, यहाँ पर कुछ भी स्टोर नहीं होता। यहाँ पर हम क्यों यूज़ करते हैं T4 साइकिल, आप देख रहे होंगे AD7 से देर इज एन डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन का मतलब होता है इन दिस 4th क्लॉक साइकिल दैट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड ए डिकोडर। आपको फर्स्ट क्या किया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपके ऑपकोड को रीड कर लिया 3 क्लॉक साइकिल में। इन 3 क्लॉक साइकिल इज रिक्वायर्ड टू रीड द ऑपकोड, आपका ऑपकोड रीड हो गया दैट इज 78। अब उस रीड ऑपकोड को क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर डिकोड करेगा। तो ये जो T4 क्लॉक साइकिल है AD7 से AD0, जहाँ पर आप डॉट 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 कर रहे हैं, देख रहे होंगे अपने साइकिल्स टाइमिंग साइकिल में, इन दिस टाइम T4 साइकिल देयर इज एन डिकोड प्रोसेस हैपेंड। यहाँ पर जो है आपका डिकोड प्रोसेस हो रहा है, डिकोडिंग हो रहा है, मतलब इट विल कन्वर्टेड इनटू द मशीन साइकिल, आपके मशीन साइकिल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट। तो ALE का आपने देख लिया, ALE इज द फर्स्ट क्लॉक साइकिल इन द हाई स्टेट एंड योर लोअर एड्रेस इज इनेबल and that your A0 to A7 will be working as a lower address enable and the rest 3 clock cycle
we see T2, T3 and T4 clock cycle, your address latch enable is the low state, that is 0. It means your D0 to D7 is enable. At the time it is D bus, data bus is working. Now next case, we'll see that IO slash M bar S1 comma S0, and where it you read you understand that अभी हमने just status signal देखा था S1 और S0. इस status signal में हमने क्या देखा कि S1 और S0 क्या होगा, हम लोग कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, फेच ऑपकोड ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपकोड फेच ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आपका इंस्ट्रक्शन है मूव ए कॉमा बी, दिस इज योर नथिंग कैन बी ऑपकोड. और ऑपकोड फेच इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, S1 और S0 स्टेटस सिग्नल both are 1, both are 1. So we see that the value is 1. Now this is your S1 and S0, this is your high and this is your high state. In this case S1 is equal to 1 or S0 is equal to 1. Now this is, you see that कि हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी से रीड कर रहे हैं. आप क्या कर रहे हैं, मेमोरी से रीड कर रहे हैं, और मेमोरी से कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 8085 को, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग मेमोरी में लिखे थे और वो रीड कर रहे हैं, सिर्फ कॉपी तो मेमोरी में स्टोर नहीं कर रहे हैं, और रीड करके एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं. तो इस केस में आप क्या करेंगे कि मेमोरी IO स्लैश M बार में मेमोरी को अगर इनेबल करना है तो क्या पुट करना होगा, 0. तो दिस इज़ द डायग्राम, ये जो आप लोअर साइड में देख रहे हैं, एंड दिस इज़ योर 0. ठीक है. नाउ गो. नाउ अब हमें देखना है कि हम रीड ऑपरेशन कब कर रहे हैं. सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने डिज़ाइन कर दिया आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है. अब इस आपने 8085 माइक्रो प्रोसेसर में अब आपको क्या करना है, रीड ऑपरेशन स्टार्ट करना है. ठीक है. वेट 1 मिनट. हेलो, हाँ सर, नहीं भेजे कहाँ आप मार्कशीट, मैं मार्कशीट भेज दीजिए तब कर देंगे. ठीक है, कुछ देर में भेज दीजिए, कर देंगे, रात भर में कर देंगे. सॉरी फॉर इंटरवेंस. तो हम लोग देखते हैं कि अब हमारा प्रोसेस क्या, रीड पर आते हैं. ठीक है. देयर इज़ एन ऑपरेशन, वी अंडरस्टैंड, रीड एंड राइट. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ रीड ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि हम मेमोरी से रीड करके ट्रांसफ़र कर दें. देयर इज़ नो एनी कॉपी फॉर द मेमोरी. अब यहाँ पर सिर्फ रीड ऑप. तो अब देखिए क्या हो रहा है, हम लोग रीड क्या कर रहे हैं, 8085 ऑपकोड को रीड कर रहे हैं. जो ऑपकोड का जो वैल्यू 78 है, ओनली वी रीड दिस ऑपरेशन. आपका ऑलरेडी मेमोरी है, वो एड्रेस लैच इनेबल, जैसे आप फर्स्ट क्लॉक साइकिल देते हैं, आपका एड्रेस इनेबल हो जाता है, मेमोरी के उस एड्रेस पर जाता है, दैट विल बी कमिंग. अब उससे मेमोरी से क्या करना है, अकॉर्डिंग टू इट विल बी, उससे ऑपकोड को रीड करना है. तो फर्स्ट आपका क्या होगा, ऑपकोड को रीड करना है. मतलब सेकेंड क्लॉक साइकिल T2 टू T3, आपका T2 से T3 आपका क्लॉक साइकिल में क्या हो रहा है, ये रीड ऑपरेशन हो रहा है, दैट इज योर रीड. T2 से T3 आपका क्या हो रहा है, रीड ऑपरेशन हो रहा है. तो दिस T2 टू T3 इज योर रीड ऑपरेशन. ठीक है. क्या रीड कर रहे हैं हम लोग, रीड कर रहे हैं हम लोग ऑपकोड को, ऑपकोड की वैल्यू को हम रीड कर रहे हैं 78, और डेट विल बी सेंड बाय द, दिस इज रिटन एज ऑपकोड फेच साइकिल, और दिस इज द रीड एंड अगेन योर हाई स्टेट. तो आप देख रहे हैं दिस T1 साइकिल आपका हाई स्टेट है, T2 से T3 आप क्या कर रहे हैं, लो स्टेट में कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऑपकोड को रीड करना है. एंड देन अगेन T4 इज योर हाई स्टेट. तो दिस इज द टाइमिंग डायग्राम ऑफ योर 8085 microprocessor में. the instruction is move a comma b का, this is the timing diagram. And now there is in how many states, there is in total 4 t states are required. आप देख रहे हैं 4 t states हमें required हो रहा है. 3 t states आप देख रहे हैं, there is an higher address and opcode, and 1 is t state, T4 is used for the decode.
डिकोड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, next timing diagram. Next timing diagram we will discuss that is MBI A, 45H. In this instruction MBI A, 45H, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, आपका ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, सॉरी दिस इज योर 8085, this is the 8085 microprocessor, and in this case this microprocessor, फर्स्ट आप क्या करेंगे, इस मेमोरी में आप अपने प्रोग्राम को रीड करेंगे। ओके, सपोज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आप क्या लिखेंगे, MBI-A, आपका जो फर्स्ट एड्रेस होगा वो क्या स्टोर करेगा, आपका ऑपकोड को, और दैट इज योर, आपने मेमोरी क्या स्टोर कर लिया, A000H, स्टोर द MBI-A, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या स्टोर करेगा, 45H, नेक्स्ट आपका मेमोरी एड्रेस क्या स्टोर करेगा, 45H, ओके। MBI-A का आपका दिस इज योर वन ऑप कोड, इसका क्या जनरेट होगा, दिस इज योर ऑप कोड इज 3E, एंड 45H इज स्टोर्ड इन योर नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस। तो फर्स्ट आपका 8000H आपका स्टोर कर रहा है 3E, एंड द नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस विल स्टोर योर डेटा इज 45H। अब हम इसका मेमोरी साइकिल डायग्राम देखते हैं। No. Now in the timing diagram, we discuss some important point. In this case, suppose we see MBI-A 45H, and this is your now. In this case, we see this is your opcode fetch instruction in cycle. In this case, we opcode fetch MBI-A comma is read, and next is 45H. This 45H is, this is your memory enable memory write operations, ठीक है। तो this is A000H will store 3 instruction, and A0001, this is your address is 45 will store, ठीक है। तो अब देखेंगे कि हमारा ये साइकिल वर्किंग कैसा करता है। ओके, now we see in this timing diagram, in this timing diagram we see there is an A000, first we read, सबसे पहले क्या रीड करेगा, आपका एड्रेस। आप सबसे पहले इस ऑपकोड जो है आपका MBI-A, इसको आपने कहाँ स्टोर किया, A000H में। सबसे पहले आपका फर्स्ट 3 क्लॉक साइकिल आपका हायर एड्रेस को स्टोर करता है। आप थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, तो देयर इज एन मिस्टेक, यहाँ पर आपका ये इस तरह से है, और ये जो आपका T4 स्टेट है ये आपका अनस्पेसिफाइड है। ये थोड़ा सा डायग्राम में मिस्टेक हो गया, यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, जस्ट बिफोर वाले में T4 में आप अनस्पेसिफाइड कर लीजिएगा। तो फर्स्ट ये हायर एड्रेस में इट स्टोर, फर्स्ट 3 क्लॉक साइकिल इज स्टोर द हायर एड्रेस A15 to A8 इज A0H, एंड द फर्स्ट क्लॉक साइकिल आप देख रहे हैं एड्रेस लैच इनेबल को आपने हाई स्टेट में किया, आपका लोअर एड्रेस स्टोर हो गया, डेट इज 00H, ओके। एंड द नेक्स्ट 3 clock cycle this ALE is in lower state, that is 0, and at the time we see that is your, and the next 2 clock cycle क्या ये करेगा, next 2 clock cycle ये opcode को read करेगा, that is your 3E, this is your opcode read condition। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, opcode को read करेगा, और this is opcode आपका क्या है, 3EH को यहाँ पर आप देख रहे हैं next 2 clock cycle read, और दिस डॉटेड लाइन, ये जो आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन, दिस इज योर डिकोडिंग टाइम, ओके। तो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट आप देखिए ये रीड ऑपरेशन के आपका हाई स्टेट, मतलब अभी कोई रीड नहीं हो रहा। आप रीड कब करेंगे, आपको ऑपकोड को रीड करना है
वी सी T2 टू T3 साइकिल हम लोग रीड ऑपरेशन कर रहे हैं क्योंकि आप ऑपकोड को रीड कर रहे हैं, एंड देन अगेन T4 इन द हाई स्टेट। ओके, यहाँ पर कोई भी राइट ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया, पूरे सिस्टम में राइट ऑपरेशन को हाई कर दिया, मतलब 1 कर दिया। देयर इज एन ऑल आर इन हाई स्टेट। ओके, नेक्स्ट। अब ये जो भी ऑपरेशन है इसमें क्या हो रहा है, मेमोरी से रीड कर रहे हैं आप, आईओ ऑपरेशन तो हो नहीं रहा है, ये ऑल आर इन मेमोरी रीड ऑपरेशन। तो मेमोरी रीड ऑपरेशन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप मेमोरी को इनेबल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप मेमोरी को इनेबल करने का मतलब है ज़ीरो लो स्टेट, तो आप देख रहे हैं कि हम मेमोरी को लो स्टेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट हमने क्या किया, हायर एड्रेस को इनेबल किया। वी सी इन दिस, फर्स्ट हमने क्या किया, MBIA में हायर ऑर्डर एड्रेस को 3 क्लॉक साइकिल, 1 क्लॉक साइकिल लोअर, एंड दिस इज द ऑपकोड फेच कंप्लीट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो डेटा है 43 इट विल बी ट्रांसफर, सॉरी नॉट इट 43, इट इज 45। that is 45, it's mistake, it's written as 45। ठीक, नेक्स्ट साइकिल में आप देखिए फर्स्ट 3 क्लॉक साइकिल क्या, हायर ऑर्डर एड्रेस को स्टोर कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट 3 क्लॉक साइकिल देख रहे हैं, क्योंकि आपको नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट अगर आप साइकिल देखेंगे तो नेक्स्ट साइकिल में आप देखिए क्या लग रहा है, देयर इज एन ओनली 3 क्लॉक पल्स आर रिक्वायर्ड, ओनली द 3 क्लॉक पल्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग द डेटा, एंड योर फर्स्ट क्लॉक साइकिल आपका क्या हो रहा है, एड्रेस को स्टोर कर रहा है फर्स्ट 3 क्लॉक साइकिल, हायर एड्रेस डेट इज A0, और नेक्स्ट में क्या हो रहा है 0 1। ठीक है, एंड डेट विल बी स्टोर द नेक्स्ट 2 क्लॉक साइकिल, योर डेटा विल स्टोर। ओके, and again the same process is happened। okay, this is